स्टैंडर्ड फिफ्थ चैप्टर 1 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। मीन्स चैप्टर में से आपको इसके आंसर्स फाइंड करके लिखने हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू आंसर्स नाउ, so I hope you will complete it and then I will give you answers and you will tally it. Then question answers, complete the answers. In question answers, first question is name some animals that were described in the first part of the story and described what they were doing. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी में जो एनिमल्स डिस्क्राइब किए हैं उसका डिस्क्रिप्शन हमें लिखना है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ स्टोरी मेंशंस अ डियर विच वॉज रेस्टिंग इन द शेड ऑफ द पाइन ट्री। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ स्टोरी मेंशंस अ डियर विच वॉज रेस्टिंग इन द शेड ऑफ द पाइन ट्री, a trout fish which was hiding along the cool bank of the stream, and butterflies which were resting. तो ये तीन एनिमल्स और इंसेक्ट दोनों के बारे में बताया हुआ है। उसमें से डियर्स जो पाइन ट्री के नीचे रेस्ट कर रहे हैं, देन जो ट्रोट यानी टाइप ऑफ फिशेस दे आर ऑल्सो रेस्टिंग नियर द बैंक ऑफ द स्ट्रीम, एंड बटरफ्लाइज विच वर रेस्टिंग। B question, why did the little cub leave his mother while she was dozing? जब लिटिल कब की मदर डोजिंग मीन्स ट्राइंग टू स्लीप, जब वो सो रही थी तो लिटिल कब वहाँ से लीव करके क्यों चला गया? Not being sleepy, he wanted to play in the green meadow, so the little cub left his mother. Not being sleepy, he wanted to play in the green meadow, so the little cub left his mother. मतलब उसको सोना नहीं था इसलिए वो ग्रीन मीडोज में खेलने के लिए चला गया। थर्ड क्वेश्चन इज इन द लेसन one cause of the forest fire has been mentioned. What do you think could be some of the other causes? मीन्स हमारे चैप्टर में, हमारे लेसन में हमने एक कॉज देखा कि किस तरह से फॉरेस्ट फायर कॉज हुई। वो कॉज ये था कि एक केयरलेस पर्सन ने एक मैचस्टिक जलती हुई मैचस्टिक को फेंक दिया। तो दूसरे रीजंस भी क्या हो सकते हैं उसके बारे में पूछा है। तो फॉरेस्ट फायर कुड ऑल्सो बी कॉज्ड बाय फ्रिक्शन इन द लीव्स विच वर ड्राइड ब्राउन बाय द स्कोर्चिंग हीट ऑफ द सन। द स्कोर्चिंग हीट ऑफ द सन की जो एकदम हार्श हीट होती है उससे जो ड्राई हुए लीव्स होते हैं, ड्राई ब्राउन हो गए लीव्स होते हैं, उनके बीच में जो फ्रिक्शन होगा उससे भी फॉरेस्ट फायर हो सकती है। सो दिस इज़ द सेकेंड कॉज। फर्स्ट कॉज हमने लेसन में देखा और ये सेकेंड कॉज भी हो सकता है फॉरेस्ट फायर के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज mention the after effects of the forest fire. आफ्टर इफेक्ट्स यानी कि फॉरेस्ट फायर हो जाने के बाद के जो सिचुएशन है दैट वी हैव टू मेंशन। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट फायर आर that 17,000 acres of timbers were burnt. Numerous wild animals were dead. The green grass was scorched. The vast forest land was rendered barren, and the poor animals that survived were scared for life. The fishes could not swim peacefully because the water was all dusty and covered with wood ash. So here you can see what were the after effects of forest fire. Let me repeat. The after effects of forest fire are that 17 acres of timbers were burnt, numerous wild animals were dead,
The green grass was scorched, the vast forest land was rendered barren, and the poor animals that survived were scared for life. The fishes could not swim peacefully because the water was all dusty and covered with wood ash. Next question is, why did the little cub get the name Smokey? I also mentioned in the chapter that why the bear little cub got the Smokey symbol. The cub was rescued from amidst forest fire and smoke. कब को रेस्क्यू किया गया था amidst forest fire और smoke के बीच से, and had burn wounds all over his body, so the little cub got the name Smokey. That is why it was given the name Smokey. Now you got the question answers, so you have to learn and write these question answers in your textbook. Then vocabulary and pronunciation. In vocabulary and pronunciation we have personification. First I'll read the paragraph and then I'll explain what is personification. Personification is a figure of speech which a thing, an idea or an animal is given human qualities or traits. तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि कोई भी थिंग, आइडिया या एनिमल को ह्यूमन क्वालिटीज़ या ट्रेट्स यानी फीचर्स यानी ह्यूमन क्वालिटीज़ या ह्यूमन फीचर्स दिए जाए किसी भी थिंग, आइडिया या एनिमल को. देयर आर पोर्ट्रेट इन सच अ वे दैट वी फील दे हैव द एबिलिटी टू एक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग. उनको ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग के जैसे बिहेव करते हैं. तो let me explain with the example. The green grass wept in a pain when a little boy walked on them, crushing them into bits and pieces. इस example में क्या बताया है? Grass is wept in pain. Grass दर्द में कराह रहा है, रो रहा है. तो ये जो फीचर है ये ह्यूमन बीइंग्स का ही है. ग्रीन ग्रास कभी रोता नहीं है. तो इससे ये बताया गया है कि ग्रास को पर्सोनिफाई किया गया है. इन द अबोव सेंटेंस द ग्रीन ग्रास वेप्ट. वीपिंग इज ए ह्यूमन फीचर. व्हेन वी से दैट द ग्रीन ग्रास वेप्ट वी पर्सोनिफाई द ग्रीन ग्रास. हमने ग्रास को पर्सोनिफाई किया, हमने ग्रास को ह्यूमन क्वालिटीज़ या ह्यूमन फीचर्स दिए. Some more examples of personification are given below. इस examples में आप देखिए hid, worried, choked, ये सारे features human beings के हैं जो trout fish, again trout fish, then the stream इनको दिए गए हैं. Now the exercise, underline the words in the given sentences that personify animals or non-living things. यहाँ पे मैंने देखिए अंडरलाइन किए हैं डांस्ड, गल्प्ड, स्प्लिट, चॉक्ड, ट्रोटिंग. तो ये सारे ह्यूमन क्वालिटीज़ ही हैं. यू हैव टू रीड दिस ऑल sentences properly and try to understand with which it is compared. कौन सी क्वालिटी है वो आपको देखनी है और समझने हैं. इसके मीनिंग्स भी आपको निकालने हैं. आई विल चेक दिस ऑल थिंग्स. वॉट एवर द होमवर्क आई एम गोइंग टू गिव यू, दैट ऑल थिंग्स यू हैव टू चेक. I will check, sorry. You have to prepare all the homeworks that I have given and I will check that all homeworks. Our next topic is pronunciation. In pronunciation, we have listened to the following words and repeat them. Pay attention to the sounds made by sh. Sh. So, in this exercise, we have sh sound words. Some words begins with sh. Some words
with SH in the middle, some words ending with SH. तो ये 3 टाइप के जो SH वर्ड्स हैं वो तुम लोगों को रीड करने हैं और लर्न करने हैं और लिखने भी है नोटबुक में. A few words with French origin also use the SH sound to pronounce words with CH. कुछ फ्रेंच ओरिजिन वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें स्पेलिंग तो CH होता है पर उसका प्रोनाउंसिएशन SH होता है. फॉर एग्जाम्पल नीचे दिए हैं कुछ एग्जाम्पल्स. शैम्पेन, शेफ, मशीन, ब्रोशर, पैराशूट. तो इन सब में स्पेलिंग में CH है बट उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो SH यानी श होता है. Most words that are spelled with TI and CI are also pronounced with SH sound. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें TI होता है तो भी वो SH साउंड करता है, CI होता है तो भी वो SH साउंड करता है. तो यहाँ पे आपको दिए हैं वर्ड्स स्पेल्ड विथ TI, वर्ड्स स्पेल्ड विथ TI, देन वर्ड्स स्पेल्ड विथ CI और कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें न CI है न TI है. देन ऑल्सो दे प्रोनाउंस SH श साउंड. तो शुगर, टिश्यू, ओशन, कंपैशन इसमें न CI है न TI है. देन ऑल्सो दे साउंड SH. They sound SH. Okay. In the next exercise on the page number 17 you have exercise in which you have to use the SH sound words. Complete the sentences using SH words. पूरी एक्सरसाइज आपको रीड करते करते आंसर्स लिखने हैं. पहले आप लोग ये जो बॉक्सेस है SH वर्ड्स वाले उसमें से पहले आप खुद से ट्राई करो, खुद से आंसर्स लिखो. देन ये इसमें देखो और अपने आंसर्स को टैली करने की कोशिश करो और अपने आप को चेक करो कि कितने आंसर्स आप लोगों ने राइट लिखे, कितने रॉन्ग लिखे. नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी सेम थिंग है. यू आर गिवन द SH वर्ड्स इन द बॉक्स. यू हैव टू यूज देम इन द exercise this paragraph. So you have to complete your work till page number 17.